Hello guys, so this is the new question based on the tree, and it is the burning tree problem, and it has a tag of hard. So this is the question. First you all read it, then try to solve it by yourself. So expected time complexity, we have to do it in order of n. So this is the question, uh, in which a full tree is given, of which a root is given, root of 1, and there is a target node that is given as 8. Target node value is given, and we have to output a integer 7. So this is the problem in which the adjacent nodes are burned. Okay, that is here. First we are burning 8, so it is burned in 0 time. All its adjacent node, that is 5, is burned in 1 time. All its adjacent node means 5's adjacent, that is 2 and 7, is burned in 2 time. All its adjacent means 2's adjacent and 7 adjacent. 2's adjacent is burned in 3 times. This is burned in 4 times, 5 times, 6 times, 7 times. So at last full tree is burned in 7 times. How? See, this is burned in 0 time, this is burned in 1 time, this is burned in 2 times, this is burned in 3 times, this is burned in 4 times, this is burned in 5 times, this is burned in 6, and this is at last burned in 7 times. So till 70 is equals to 7 second, full tree will be burned, and we have to find the time till full tree will be burned. You may all read it. It will take 1 second all node connected in the given node to get burned. All its adjacent node will only burn. So this problem is reduced to a burning candle problem. Suppose a candle is given, and we can also take it as a coronavirus chain. There is a chain matchstick. Okay, if we are not involving in this chain, so we are not allowing other to get infected through us. So please stay away from that chain. So this is the problem where this is the candle given that is burned at a t is equals to 0 second, and this all its adjacent candle will burn at t is equals to 1 second. All its adjacent candle that is burned at t is equals to 0 will burn at t is equals to 2. Then this will come, and a full tree will burn. A full all its candle will burn at t is equals to 3 seconds. We have to output t is equals to 3. So this question is firstly divided into two cases. Suppose the case is that the given target node is a leaf node. So like in this question, in this GFG question, there is a only leaf node. So it's a सिंपल सी बात है भाई, लीफ नोड है, लीफ नोड का कोई एक पाथ होगा थ्रू इट्स पेरेंट. ठीक है, यहाँ पे 8 था, इसके पेरेंट के थ्रू या तो 8 5 7 एक पाथ होगा, या तो 8 5 2 4 एक पाथ होगा. ठीक है, या तो 8 5 2 1 3 6 9 10 एक पाथ होगा. ठीक है, पूरा बर्न होने में. और मैक्सिमम पाथ जो है वो यहाँ पे मैंने बोला है, जो कि आखिरी वाला था, जो कि है 8 5 2 1 3 6 9 एंड 10. सो इट्स द आंसर. उसका हमें लेंथ निकालना है और वो आउटपुट करना है. So the target node here is 8, and we have to find the time when the full tree will burn. So this is the simple question, क्योंकि इसमें लीफ नोड दिया है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0. So let's explain the code with the algorithm. Suppose this is the tree given 10 20 30 40 50 60 and 70, and the target node is this. This is the target node, that is 50. हमें यहाँ से शुरू करना है at t is equals to 0 सेकेंड. t is equals to 0 सेकेंड में ये बर्न होगा. इसके जो एडजेसेंट नोड हैं जो कि है t is equals to 1 सेकेंड में, ये सब बर्न होंगे. t is equals to 1 सेकेंड में ये 20 वाला बर्न हो जाएगा. t is equals to 2 सेकेंड में ये बर्न हो जाएगा, प्लस जो इसका एडजेसेंट नोड है वो t is equals to 2 सेकेंड में बर्न हो जाएगा. Then this will burn in t is equals to 3 second. This will burn in t is equals to 3 second, and this will finally burn in t is equals to 4 second, and this will be our answer. So we have to output the answer as 4. So this problem is simply reduced to the maximum path through the ancestors. So first, what is ancestor?
50 का एंसेस्टर्स कौन कौन होगा, 50 के एंसेस्टर्स वो होगा जो पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पाथ में हो। तो पेरेंट्स की तरफ से कौन आ रहा है, 50। 50 खुद एक एंसेस्टर है। 50 के एंसेस्टर कौन कौन होंगे, 50 के एंसेस्टर्स होंगे हमारे, एक खुद 50 होगा, एक 20 होगा, और एक 10 होगा। जिस पेरेंट से वो आ रहे हैं, 50 है, 50 वो खुद से तो आ ही रहा है, 50 वो 20 से भी आ रहा है, फिर 20 कहाँ से आ रहा है, 10 से आ रहा है। अगर 10 के ऊपर भी कोई पेरेंट होता है तो हम उसे भी कंसिडर करते, दे आर कंसिडर टू बी एन एंसिस्टर। एंसिस्टर्स मीन्स जो हमारा फैमिली रिलेशनशिप आ रहा है, जहाँ से वो पेरेंट्स के थ्रू वो आ रहे हैं। तो हमें ऐसा फाइंड करना है मैक्सिमम पाथ। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से ये बर्न होना शुरू किया, ठीक है, इसके थ्रू ये बर्न होगा, इसके थ्रू ये बर्न होगा। अगर यहाँ पे सब ट्री होता तो वो बर्न होते, ठीक है। सो नाउ अभी सब ट्री के बारे में ना सोचें, वो केस 2 में आएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस 1 दैट इज द लीफ नोड इज गिवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी लेंथ, ऐसा पाथ फाइंड करेंगे थ्रू इट्स एंसेस्टर। सिंपल सी बात है, होगा तो एंसेस्टर से ही कोई भी पाथ, क्योंकि यहाँ से हम एडजेसेंट नोड बर्न करते जाएंगे तो वो पहले पेरेंट में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर कहीं भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से फाइंड करते रहेंगे, जो भी उसका पेरेंट नोड आ रहे हैं, जो भी उसके एंसिस्टर नोड आ रहे हैं, उसमें से पहले उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की लेंथ निकालेंगे। 20 की इस साइड कितने आ रहे हैं, ये इसकी हाइट क्या है, 1, इसकी हाइट 2, इसकी हाइट 3। सो फ्रॉम 40 इज एट ए हाइट 3 एंड 20 इज एट ए हाइट 4। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे ये 3 हाइट पे है और ये 1 डिस्टेंस पे है 50 से। तो हम फाइंड भी करेंगे किस तरफ 50 है। अगर 50 राइट साइड है तो हम हाइट निकालेंगे लेफ्ट साइड में, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड की। और अगर हमारा नोड जो टारगेट नोड है वो लेफ्ट साइड पे है, सपोज इस केस में अगर 10, 20, 50 की बात करूं, तो इस केस में जो आखिरकार टारगेट है, मतलब ये जो सब ट्री है, जो टारगेट किस सब ट्री में है, लेफ्ट सब ट्री में है, तो हम फाइंड करेंगे राइट साइड की हाइट और फिर उसको मैक्सिमम करते हैं। जैसे इस केस में क्या है, 10 की लेंथ कितनी है, 10 की दूरी कितनी है 50 से, यहाँ पे है ये 0 दूरी पे है, ये 1 दूरी पे है, ये 2 दूरी पे, तो 10 है, प्लस इसकी हाइट, इस सबट्री की हाइट भी 1 है, तो यहाँ पे 3, टोटल 0, 1, 2, 3, 3 टाइम इट विल टेक टू बर्न दिस साइड, दिस पाथ, एंड दिस विल टेक, ये 0 दूरी पे है 50, क्योंकि खुद से 0 दूरी पे ही होगा, ये 21 दूरी पे है 50 से, ठीक है। अब मैं इस साइड की हाइट फाइंड कर लूँ, कितने आएगी, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हुआ, 4, 4, 4 कैसे कंफर्म करें, 0 टाइम में ये बर्न होगा, 1 टाइम में ये बर्न होगा, 2 टाइम में ये, 3 टाइम में ये, 4 टाइम में, तो आउटपुट विल बी द मैक्सिमम पाथ लेंथ, ठीक है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है बर्न टाइम, जो एक पूरा ट्री इनपुट ले और उसमें फाइंड करे क्या, पहले हाइट, नॉर्मल एक हम हाइट का रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसको हम मॉडिफाई करेंगे, जिसमें एक रेफरेंस वेरिएबल होगा डिस्टेंस के नाम से, डेट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट नोड इफ इट इज अ डिसेंडेंट। अगर वो उसके नीचे होगा, अगर वो उस सब ट्री में होगा, तो उसकी हाइट, वो लेंथ वो फाइंड कर देगा उस टारगेट नोड से। सपोज 20 है, 20 के डिसेंडेंट है 50, तो हम फाइंड कर देंगे इसकी इससे दूरी, दैट इज 1। 10 है, 10 का डिसेंडेंट है 50, तो हम दूरी फाइंड कर देंगे 50 की 10 से, दैट इज 2 इन दिस केस। अगर 40 की बात करो तो 40 का डिसेंडेंट है क्या 50, वो तो 40 ना उसके लेफ्ट सेप्ट्री में है ना राइट सेप्ट्री में है, तो हम इस केस में जो उसकी डिस्टेंस होगी वो हम लेंगे -1। सो वी हैव टू राइट अ फंक्शन दैट विल रिटर्न 2 वैल्यू। एज वी ऑल नो C++ में 2 वैल्यू हम रिटर्न नहीं करा सकते, या करा सकते हैं तो फिर पॉइंटर का अप्रोच लगानी पड़ेगी। बाकी उससे कंपैरेटिवली मैंने एक रेफरेंस वाला यूज़ किया है, जिसमें एक हमने वेरिएबल लिया है डिस्ट के नाम से, जो कि इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट नोड इफ इट इज़ अ डिसेंडेंट। अगर वो डिसेंडेंट है तो वो डिस्टेंस रिटर्न करेगा पॉजिटिव, मतलब या तो 0 डिस्टेंस पे हो या 1 डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे। इफ इट इज नॉट अ डिसेंडेंट देन इट विल रिटर्न -1, सिंपल। So let's take and solve this considering this problem. So first ये पूरा ट्री इनपुट जाएगा, जो मैंने कहा था बर्न ट्री एक
सो वो लिखा है, कोड दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन इट विल कोड. सो दिस इज द मेन, दैट इज रूट. इसमें हमने 84 लिया, ये सब लिए हैं, ये आपको एग्जांपल अभी बता दूंगा किस चीज़ का है. देन देयर विल बी दी बर्न टाइम, जो रूट लेगा, पूरे ट्री का रूट लेगा, जो हमें फाइंड करनी है, दैट इज द टारगेट और द लीफ, और दिस इज -1. और हमें ये रिजल्ट हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, जो हमारा मैक्सिमम पाथ लेंथ निकल रही होगी वो रिजल्ट में स्टोर होगी. सो लेट्स कम टू दी फंक्शन नेम burn time, एंड इट विल नोट एस्ट्रिक रूट, फिर यहाँ पे लीव होगा, और ये डिस्टेंस जो कि एक रेफरेंस है. ठीक है. और यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इफ रूट इज इक्वल इक्वल नल रिटर्न 0, और इंट एल एच इज इक्वल टू लेफ्ट साइड की हाइट निकाल दी, राइट साइड की हाइट निकाल दी, और यहाँ पे रिटर्न कर दी 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड हाइट. इट इज सेम जो रिकर्सिव फंक्शन हम हाइट में यूज़ करते थे. सो इस प्रॉब्लम का प्री रिक्विजिट पहले यही है कि हमें हाइट निकालनी आनी चाहिए. हर एक रिकर्सिव कॉल स्टैक में क्या हाइट आ रही है, जैसे इस केस में यहाँ पे 70 की हाइट आ जाएगी 1, यहाँ पे इस केस में से 60 की हाइट आ जाएगी 2. सो देखो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हम एवरी कॉल स्टैक जो हमारा रिकर्सिव कॉल स्टैक होगा दो चीज़ें रिटर्न करेगा. बाय द वे रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न तो एक ही चीज़ करेगा क्योंकि वो हाइट है और ये रेफरेंस है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो रिटर्न ही कर रहा है, क्योंकि वहाँ देखो ये फंक्शन था, ये फंक्शन है, हमने इस फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ उस वेरिएबल में कुछ चेंजेस हो गए तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर. तो सिंपल सी बात है, ये रिटर्न ही हो गया. पॉइंटर ही अप्रोच है, बट C++ में पॉइंटर नहीं यूज़ करके हमने रेफरेंस यूज़ किया है. सो 70 है, 70 में पहले डिसेंडेंट हम पहले चेक करेंगे कि उसके डिसेंडेंट में ये टारगेट नोड है या नहीं है, क्योंकि इस केस में डिसेंडेंट टारगेट नोड नहीं है. डिस्टेंस फ्रॉम 50 इफ इट इज दिस डिसेंडेंट, तो -1 रिटर्न कर दिया, हाइट यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया, यहाँ पे -1 रिटर्न हो गया, हाइट यहाँ पे 2 रिटर्न हो गया, -1, देन हाइट 3. देन अब इस केस में आया, अब इस केस में जैसे ही आया तो उसने राइट सब ट्री कॉल किया होगा, क्योंकि ये हमारा क्या, ये हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है. पहले हमने रूट में काम, रूट लेफ्ट में काम किया, फिर रूट में आया, फिर राइट में, ऐसे करके कुछ होता है हाइट का, जैसे हमने फंक्शन कॉल करते हैं. सो दैट्स द प्रॉब्लम. इस केस में यहाँ पे 50 है, 50 हमारा 0 दूरी पे है 50 से ही, क्योंकि खुद से उसकी दूरी क्या होगी, 0 ही तो होगी, और हाइट क्या है 1 है. तो इस केस में अगर हम जाएं तो जैसे ही हमें ऐसा केस, ऐसा फंक्शन बनाना है कि हम चेक करें क्या हमारा राइट में वो 50 है, क्या हमारा राइट का जो डिस्टेंस है वो -1 नहीं है. अगर -1 नहीं है मतलब वो 50 से कुछ ना कुछ दूरी पे है, मतलब वो कुछ उस सब ट्री में वो 50 आता है. ठीक है. अगर माइनस देखो, अगर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1, मतलब इस पूरे सब ट्री में वो 50 नहीं आता है, पूरे सब ट्री में वो टारगेट आता ही नहीं है. इस यहाँ पे 0 है तो मतलब इस सब ट्री में वो 50 आता है, यहाँ पे 1 है मतलब इस सब ट्री में पूरा 50 आता है, इसमें -1 है, इस सब ट्री में 50 नहीं आता है, इस पूरे में 2 है क्योंकि इस पूरे ट्री में 50 आता है. यहाँ पे हम 0 करेंगे, 1 यहाँ पे हाइट हो गई है, और यहाँ पे हम ऐसा लॉजिक लिखें कि अगर वो 50 राइट साइड है तो हम क्या करें, जो लेफ्ट साइड की हाइट थी प्लस जो हमारा ये 50 दूरी है उसका +1 कर दें. मतलब सपोज यहाँ पे अगर 0 है तो पहले तो इसका डिस्टेंस +1 कर दें, जो कि 1 हो गई यहाँ पे. अब इस 1 के साथ हम ऐड कर दें लेफ्ट सबट्री की हाइट, क्या पता यहाँ पे बहुत लंबा डिस्टेंस निकल रहा हो. सपोज यहाँ पे 60 है, 60 के नीचे राइट साइड में एक स्क्यूड हमारा नोट्स होते जो कि यहाँ पे 70, 80, 90, तो हमारा आंसर वो हो जाता. ठीक है. तो यहाँ पे पूरी हाइट ही चेंज हो जाती है. सपोज यहाँ पे 70, 80 दो और होते हैं, तो यहाँ पे 80 की हाइट होती 1, 70 की हाइट होती 2, एंड देन 60 की हाइट होती 3, 40 की हाइट होती 4, एंड देन दिस हाइट विल बी 5. सो इसकी हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम इस पाथ से यहाँ तो आ गए, इस पाथ से यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड कर दिया 50 की दूरी, भाई यहाँ पे एक दूरी पे ये है, मतलब 0, 1 दूरी पे ये है. अब इस साइड मैक्सिमम पाथ कौन सा बनेगा वो हम राइट हाइट के थ्रू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ जो आ रहा होगा. सो इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी 3, एंड वी कीप ऑन रिकर्सिंग दैट, जो मैक्सिमम लेंथ आता है आती जाएगी. तो 50 के केस में मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 0 है,
क्योंकि इसका कोई सब ट्री नहीं है, इसका भी कोई सब ट्री नहीं है, तो 50 केस में 0 है। इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है 4, क्योंकि यहाँ पे 3 राइट साइड है और 1 ये खुद की डिस्टेंस है, तो 0 1 2 3 4। एंड अगर 10 की बात है, 10 भी एक एंसिस्टर है 50 का। एक हमने 50 का डिस्कस कर लिया, 20 का डिस्कस कर लिया, 10 की अगर डिस्कस करें तो 10 का क्या हो सकता है, क्योंकि 10 के वो लेफ्ट साइड है 50, तो हम राइट साइड की लेंथ निकालेंगे। सो इस केस में राइट साइड की लेंथ क्या है, राइट साइड की हाइट क्या है 1। सो देर विल बी एन एडिशन ऑफ 2 + 1, 2 जो ये इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द डिसेंडेंट टारगेट नोड, प्लस 1 जो इस साइड इसकी हाइट आ रही है। सो सिंपल सा लॉजिक है कि हम पाथ में मैक्सिमम फाइंड कर देंगे। सो राइटिंग द कोड, सो कोड हमारा यही होगा कि पहले हम हाइट वाला लॉजिक लिख लें, और अगर लीफ है तो ये कर लें। अगर तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बोला था। केस 1 कि अगर उसमें दिया हो कि जो हमारा टारगेट नोड है वो लीफ नोड हो, तो सिंपल सी बात है, हम ये ना करके हम रिटर्न करा दें 1, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम होगा वो 1 ही होगा इस साइड से। ठीक है, हमारा हाइट ही नहीं है कुछ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बाकी इस अगर हम ये वाला केस लें, केस 2, कि अगर वो जो टारगेट नोड है वो कहीं बीच में भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी हाइट निकाल देंगे। जो मैक्सिमम हाइट आ रही है उस मैक्सिमम हाइट को रिजल्ट में भी स्टोर करा देंगे, क्या पता वो आंसर हो। 1 + a भी निकाल देंगे। अब आंसर कैसे हो जाएगा, सपोज मैं इस केस की बात करूँ 50, और 50 के नीचे ये लेफ्ट सब ट्री की हाइट सपोज है 10, और इस सब ट्री की हाइट है 5। तो सिंपल सी बात है, 10 तक जा रहा है, मतलब इसको बर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बजाय तब तक ये तो पूरा ट्री बर्न हो जाएगा, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे a इज इक्वल टू हाइट। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ गई, राइट सब ट्री की हाइट आ गई, उसमें से मैक्सिमम हमने स्टोर कर दिया, 1 + मैक्स a भी हमने रिटर्न करा दिया। अब ये केस आता है जब लेफ्ट सब ट्री की हाइट, जब हम रिकर्जन करेंगे लेफ्ट और राइट, अगर रूट का की जो है वो लीफ नहीं है, अगर रूट का डेटा सपोज 60 है, 60 इज नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम इस चीज में आ गए कि 60 के लेफ्ट सब ट्री में चले जाओ और राइट सब ट्री में चले जाओ, उन लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल दो, राइट सब ट्री की हाइट निकाल दो, लेफ्ट सब ट्री का डिस्टेंस भी निकाल दो, और राइट सब ट्री का डिस्टेंस भी निकाल दो। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री का डिस्टेंस -1 है, राइट सब ट्री का डिस्टेंस ये है, लेफ्ट सब ट्री का ये हो गया। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो इसको स्टैक से इस रिकर्सिव फंक्शन से ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे एल डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चेंज हुआ होगा, तो ये एल डिस्ट में चेंज आ गया यहाँ पे। ठीक है, और आर एच में ये आर डिस्ट में चेंज आ गया। अगर लेफ्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू -1 मीन्स जो हमारा टारगेट नोड है वो लेफ्ट साइड है। अगर लेफ्ट, इफ लीफ इज इन लेफ्ट सब ट्री, देन व्हाट वी विल डू, वी विल, इसका जो पेरेंट है जिससे हम अभी कॉलिंग कर रहे हैं, जिसमें हम करंटली हैं, उसमें उसका जो डिस्टेंस है हम इसके डिस्टेंस को +1 कर देंगे। तो मतलब एल डिस्ट जो हमारा आया +1, तो हमने ये कर दिया। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस केस में क्या था, 0 ये था, 0 हमारा डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा था। हमने क्या किया, अगर अगर राइट सब, चलो आपको लेफ्ट सब ट्री की बात बताता हूँ। अगर ये 1 है, यहाँ पे 1 डिस्टेंस आया था, अगर ये लेफ्ट साइड है तो हमने क्या किया, ये करंटली ये कॉल कर रहा है इस लेफ्ट को, तो यहाँ पे चेंज होके 1 आया, तो 1 + 1, तो यहाँ पे 2 चेंज होना चाहिए हमारे डिस्टेंस में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एल डिस्ट +1, और रिजल्ट जो हमारा मैक्सिमम जो रिजल्ट हमारा आना है इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा डिस्ट प्लस आर एच। अब ये क्यों किया, ये हमने इसलिए किया, सपोज इस केस में ही देखें तो 2, मतलब इस साइड की पाथ लेंथ तो है 2, इसको रूट कंसिडर करते हुए, और इस साइड की जो हाइट है, सपोज यहाँ पे 10 हाइट होती, तो 10 + 2 12 हो जाता। इस केस में यहाँ पे हाइट है 1, क्योंकि एक ही लीफ है, एक ही नोड है, तो यहाँ पे हाइट होगी 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा 1 जा सकता है, और 2 ये पाथ लेंथ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 1 3, तो यहाँ पे 0 टाइम में ये जलेगा, 4 टाइम में ये बर्न होगा, 2 टाइम में ये, 3 टाइम में ये। सो यहाँ पे इस केस में भी सेम यही है। अगर सेम फंक्शन, सेम चीज़ हम राइट साइड के लिए भी लिखेंगे कि अगर वो नोड, टारगेट नोड राइट साइड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो पेरेंट वाले में
इस राइट साइड का जो डिस्टेंस था उसका +1 कर देंगे। सपोज यहाँ पे 0 था तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, हाइट तो वैसे चल ही रही थी। बाकी राइट लेफ्ट साइड में जो हमारी हाइट आ रही है उसको प्लस ये जो डिस्टेंस है उसको अगर हम ऐड कर देंगे और वो अगर रिजल्ट से मैक्सिमम आ रहा है, मतलब ये पाथ सबसे मैक्सिमम आ रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो वही केस हमारा एल्स इफ आर डिस्ट नॉट इक्वल टू -1, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आर डिस्ट +1, रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, एंड देन रिजल्ट इज इक्वल टू 1 प्लस मैक्स ऑफ LH RH। सो दैट्स द प्रॉब्लम। और इस केस में जो कि हमारा 84, 37, 88 दिया हुआ है। सो ये तो बात थी जब हमारा लीफ नोड था। सो देन कम्स जो हमारा लीफ नोड नहीं है, जो कि मैंने लिख के रखा है। सपोज हमारा टारगेट नोड ये होता है, क्योंकि ये लीफ नोड नहीं है, ठीक है, तो ये 0 टाइम में बर्न होगा, इसका एडिशन नोड 1 टाइम में बर्न होगा। इन दोनों के एडिशन नोड, क्योंकि इसका एडिशन नोड नहीं है तो क्या बर्न होगा, इसका एडिशन नोड 2 है, ये 37 है, so it will burn in 2 time. Then its adjacent node, that is the 4 and 63, it will burn in 3 time, and its adjacent node, that is the 32 and 82, that will burn in 4 time, and it will finally burn in 5 time. So this tree will take 5 time to burn the full from the target node, that is the 88. So हमने दो चीज लिखी है, that is the 0 and 2, जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा डिस्टेंस है और ये हाइट है। क्योंकि हमारा इसके सब ट्री में, इसके डिसेंडेंट में ये टारगेट नहीं आता है, तो माइनस सबका देखो -1 है, क्योंकि इन सबके डिसेंडेंट में वो आता ही नहीं है, तो इसका -1 आ गया। और ये सबकी हाइट है, यहाँ पे हाइट 1 है, यहाँ पे हाइट 2, यहाँ पे हाइट 3, ये 4, यहाँ पे 2, ये 1, और ये यहाँ पे हाइट 5 है। अब इसके ट्री में तो आता ही है, यहाँ पे भी -1 है, क्योंकि इसके डिसेंडेंट में कहीं आता ही नहीं है, इसके डिसेंडेंट में आता है, ये खुद ही वो नोड है। तो यहाँ पे 0,2, 0 क्या होगा, डिस्टेंस of the current node, that is 88 from the target node, that is also 88, मतलब 88 से 88 की दूरी, that is 0 जो पहले बोला था, और यहाँ पे 1, ये +1 हो जाएगा। सो हमारा लॉजिक यही चलेगा। तो जैसे ही मैं इस केस में आया तो हम क्या करेंगे, इस साइड की हाइट, that is राइट साइड की हाइट कितनी है, 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 ना होके यहाँ पे 10 होती है हाइट, यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके बहुत सारे होती है, और मैक्सिमम हाइट क्या आ जाती है, 10 चले जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 10 + 1, 10 + 0 कितना होता है, 10 + 0 10 होता है, और रिजल्ट में हम अपडेट कर देते 10। इस केस में क्या है, 1 + 0, तो रिजल्ट में हमने अपडेट कर दिया क्या, 1, 1 + 0 1। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसके एंसेस्टर में आए, इसका एंसेस्टर कौन सा है, 84, तो हमने चेक किया लेफ्ट साइड में है, तो हमने सबसे पहले इसके डिस्टेंस को, इस राइट साइड में है तो हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को इसके राइट साइड के डिस्टेंस +1 कर दिया, मतलब यहाँ पे 0 था राइट साइड के डिस्टेंस, और तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया ऐसे, कॉमा ये 5 तो हाइट आ ही रही थी। बाकी हम क्या करेंगे, क्योंकि ये टारगेट नोड राइट साइड में है तो हम लेफ्ट साइड की हाइट देखेंगे, मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है, 4, और वो कौन सी है, ये वाली सब ट्री। तो हमारा पाथ कौन सा बन जाएगा डायरेक्टली, ये वाला 0 1 2 3 4 5, इस पाथ में हम चले जाएंगे मैक्सिमम। तो हमें लेफ्ट साइड में मैक्सिमम पार्ट ढूंढना है, और इधर तो हम जहाँ टारगेट में जा ही रहे थे वो आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 + 4 दैट इज 5, तो यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा 5, क्योंकि 5 बड़ा है 1 से। सो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा रिजल्ट 5। सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट कोड। 84 है, 84 के लेफ्ट में 37 है, फिर यहाँ पे 88 है, फिर ये 4 32 ये सब हैं, ये सब दे रखा है, एंड देयर इज अ फंक्शन कॉल दैट इज द बर्न टाइम, और उसमें हमारा टारगेट नोड 88 है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। So it is printing 5. So what is 5? That is the result. Means it will take 5 time to burn the full tree, and that is the correct answer according to us also. Result is equals to 5. So this problem is finally reduced to a problem that we have to find the maximum length path through all its ancestors, और जो maximum length आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि फुल ट्री को बर्न होने में जो मैक्सिमम तरीका है, जो मैक्सिमम पाथ है टिल इट्स नोड पूरा बर्न होने में, तो वही आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अब इस केस में अगर आ जाए
ये अगर आपके ट्री है 10 20 40 50, अगर इस केस में टारगेट नोड दे रखा है 20, तो ये 0 टाइम में बर्न होगा। ऑल इट्स एडजेसेंट 1 1 1, ये 1 टाइम में तीनों बर्न हो जाएंगे। फिर ये 2 टाइम में बर्न होगा, ये 3 टाइम में बर्न होगा। तो हमारा मैक्सिमम पाथ कौन सा हो जाएगा? ये हमारा मैक्सिमम पाथ हो जाएगा 50 20 10 30 60। मैक्सिमम पाथ कैसे आएगा? हम राइट सब ट्री ये कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे ये 0 लेंथ पे है टारगेट नोड से, ये 1 लेंथ पे है, तो 1 प्लस ये 2 है, कितना होगा 1 प्लस 2? 3। सो 0 1 2 3, तो 3 लेंथ में ये पूरा हमारा ट्री बर्न हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 3 आना चाहिए। सो दैट्स द प्रॉब्लम, ट्राई इट। And there is a small change in this question here also. You may try this small changes. That's very simple कि लीफ नोड है तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिटर्न वही करेगा। So it will work. It is much a better solution as it will work for a non-leaf node, non-leaf target node also. So you may try it also. So hope so you may find it good. Thank you.